کیا اس نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آ رہا ہے؟ اعظم احمد نے عقیلہ بیگم سے پوچھا، جو بھی عشاء پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ میں بکری تسبیح کے دانے گراتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہیں کچھ فاصلے پر گل خان بھی کھڑا تھا۔ عقیلہ بیگم کی جانب سے اشارہ ملتے ہی انہوں نے گل خان سے جانے کا کہا۔ وہ پیپرز عقیلہ بیگم کی طرف بڑھائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ رکھ لیجئے، وہ آئے تو اسے دے دیجیے گا کہ دستخط کر دے۔ عقیلہ بیگم نے لفافہ ان کے ہاتھ سے لے لیا، جبکہ وہ خود اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گئے۔ ویسے وقت تو کافی ہو گیا، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ اعظم احمد نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ اگر اس نے کہا ہے کہ آئے گا تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ آپ کا پوتا ہے۔ وہ پیپرز ایک جانب رکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیے۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، وہ یہ کہہ کر ان کی جانب سے رخ پھیر کر لیٹ گئے۔ عقیلہ بیگم جانتی تھی کہ وہ بہت دکھی ہیں۔ ایمان کے سائن کرنے کے بعد انہوں نے کسی طرح کوشش کر کے گاؤں ایمان کے والد رشید خان سے بات کی اور انہیں شہر آنے کو کہا۔ رشید خان بھی ان کے اس طرح اچانک بلانے پر پریشان ہو گیا تھا۔ رشید خان کل آئے گا؟ عقیلہ بیگم نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر پھر بھی عقیلہ بیگم کو سنائی دے گئی۔ اگر آپ غزنوی کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں تو ہم اس فیصلے کو ملتوی کر سکتے ہیں۔ عقیلہ بیگم کے دل میں ہلکلاتا سوال زبان پہ آیا۔ نہیں، اگر ایمان نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ وہ بنا ان کی جانب رخ کیے بولے۔ پتہ نہیں، مجھے ایک مہم سی امید تھی کہ شاید ایمان اس پہ دستک نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ہمیشہ غزنوی کے لیے چمکتے جذبے دکھے ہیں۔ عقیلہ بیگم کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ تمہیں یہ امید تھی یا پھر تم ایسا نہیں چاہتی تھی کہ ایمان دستخط کرے؟ اگر اس نے ہمارے فیصلے کے آگے بڑھایا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی ٹھوس وجہ ہوگی۔ کیا تم ایسا نہیں چاہتی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور عقیلہ بیگم کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایمان کو دکھی دیکھنا، یہ سب مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے، حالانکہ یہ فیصلہ میرا اپنا تھا۔ ان کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ اعظم احمد اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ تم دیکھنا میں اپنی بیٹی کی شادی کتنے اچھے لڑکے سے کروں گا، غزنوی سے بھی اچھا۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ غزنوی سے اچھا ایمان کے لیے آپ کو چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں۔ دروازہ کھول کر غزنوی اندر آیا تھا۔ وہ دونوں سے اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ السلام علیکم۔ وہ ان دونوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا۔ چہرے سے تھکن صاف ظاہر تھی، مگر لہجہ حشاش بشاش تھا۔ وعلیکم السلام۔ عقیلہ بیگم نے اس کے لیے بازو وا کیے، جبکہ اعظم احمد خفگی ظاہر کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ مسکراتے ہوئے عقیلہ بیگم سے ملا۔ داد جی، ایمان نے آپ کو مجھ سے چھین لیا ہے، اس کے لیے اب آپ مجھ سے بات تک نہیں کریں گے؟ وہ فوراً ان کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ خبردار، جو میری بیٹی کے متعلق ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اعظم احمد نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ اچھا، نہیں کرتا گستاخی آپ کی بیٹی کی شان میں۔ آپ لوگ آرام کریں، کل ملاقات ہوگی، شب بخیر۔ وہ اعظم احمد سے کہتا اور عقیلہ بیگم کے ماتھے کا بوسہ لیتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ محبت کی نہیں تم نے؟ اگر تم کو محبت تھی تو تم نے راستوں سے جا کے پوچھا کیوں نہیں منزل کے بارے میں؟ ہواؤں پر کوئی پیغام تم نے لکھ دیا ہوتا، درختوں پہ لکھا وہ نام تم نے کیوں نہیں ڈھونڈا؟ وہ ٹھنڈی اوس میں بھیگا مہکتا سا گلاب اور میں مرے دہانی سے آنچل کو تمہارا بڑھ کے چھو لینا، چراتا رنگ تتلی کے کبھی جگنوں کی لو پانا، کبھی کاغذ کی کشتی بنانا، دل کی صورت اور اس پر خواب لکھ جانا، کبھی بھنوے کی شوخی اور کلیوں کا وہ اٹھلانا۔ تمہیں بھی تو یاد ہوگا، اگر تم کو محبت تھی تو تم یہ ساری باتیں بول سکتے تھے، نہیں جانا؟ محبت تم نے دیکھی ہے، محبت تم نے پائی ہے، محبت کی نہیں تم نے۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ وہ دروازے کی جانب کمر کر کے بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ بنا آہٹ قدم اٹھاتا آس پاس آیا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ آوارہ لٹے چہرے کے ارد گرد سایہ فگن تھی۔ گلابی لب سختی سے باہم ملے ہوئے تھے اور گھنیری پلکیں میں ہلکی سی لرزش بغور دیکھنے سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے آیا۔ ایمان کو اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے بالکل قریب ایک دشمن جان کو مسکراتا پایا، جسے اس کے وجود میں محبت کا شجر لگایا تھا، جس کی خوشبو سے اس کا تن من معطر رہتا تھا۔ آپ
वो उठ खड़े हुए। जी, कोई ऐतराज़? उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। उसके लबों की मुस्कुराहट ईमान को अपना मजाक उड़ाती महसूस हुई। उसने नज़रों का रुख फेर लिया। गज़नवी ने भी उसकी नज़रों में छुपी नापसंदीदगी को पा लिया था। गज़नवी ने अपने और उसके बीच फासले को कम किया। पीछे रहकर बात कीजिए, उसके बढ़ते कदमों से घबराई थी। और अगर मैं करीब आकर बात करना चाहूँ तो? वो मज़ीद करीब हुआ। हमारे बीच अब ऐसा कुछ नहीं जिसे आप बुनियाद बनाकर मेरे और अपने बीच के फासले को मिटा सको, लिहाजा अपने हवासों में रहिए, उसने तल्ख लहजे में कहा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाया। मगर गज़नवी ने उसका रास्ता रोक लिया। इतने दिनों बाद देख रहा हूँ, थोड़ा करीब से तो देखने दो। गज़नवी ने अचानक उसकी कमर में बाजू डालकर उसे करीब किया। उसकी इस हरकत पर ईमान उसे गुस्से से देखा और दोनों हाथ उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे किया। गज़नवी की गिरफ्त कमज़ोर थी, इसलिए उनके बीच का फासला बढ़ गया। मेरे और आपके बीच जो फासला है वो इस फासले से कहीं ज़्यादा है, जिसे पार करना आपके बस की बात नहीं, और ना ही कभी ऐसी कोशिश कीजिएगा। उसे वार्निंग देती कमरे से निकल गई, जबकि गज़नवी चेहरे पर मुस्कुराहट मगर आंखों में फिक्रों का जाल लिए खड़ा रह गया। ये क्या तरीका है? गया। वो रात के खाने की तैयारी कर रही थी जो वो किचन में आकर उसके सर पे खड़ा हुआ। क्या है? ईमान ने नासमझी से उसकी जानिब देखा और फिर वापस अपने काम में मशगूल हो गई। मेरी तरफ देखो। गज़नवी ने उसकी लापरवाही पर खोलते हुए से बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। उसकी सब गिरफ्त ईमान को दर्द से दो चार कर गई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ईमान ने झटके से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया। लेकिन मुझे करनी है, गज़नवी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। ईमान ने एक पल को उसके चेहरे पर छाए गुस्से के बादलों को देखा और बोली, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अब मेरे और आपके बीच ऐसा कुछ नहीं है जिस पे बात की जाए। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर लहजे में सख्ती साफ महसूस की जा सकती थी। तुम कौन होती हो इसका फैसला करने वाली? ईमान का अंदाज उसे आग बबूला करने में भरपूर किरदार अदा कर रहा था। एक तो उसे अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दे रही हो और ना ही खुद इस मौजू पर बात करने को तैयार थी। दूसरी जाना वाज़ा महमद और अकीला बेगम ने भी इस मामले में उसके साथ सर्द महरी से काम लिया था। वो जब से आया था उनसे बात करने की तगोदो में था, मगर वो उसे मौका ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने अगली सुबह खुला के कागजात उसे दस्तखत करने के लिए दे दिए थे। उसका जी तो चाहा कि इसी वक्त उनके सामने इस आज़ादी के परवाने को फाड़ दे, मगर एहतराम आड़े आ गया। सिर्फ शुमाइला बेगम और मलाइका ही थी जो उसे अपने इरादे पर कायम रहने का मशवरा दे रही थी। इन्हीं की बातों में बंद करते हुए वो बार बार ईमान के सामने जा खड़ा होता, मगर वो उसकी किसी भी बात को खातिर में नहीं लाती थी। ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखो कि तुम जो चाहती हो मैं वो होने नहीं दूंगा, वो दो टोक अंदाज में बोला। मैं चाहती हूँ ऐसा। ईमान की सवालिया नजरें उसकी जानिब उठी हुई थी। तो और कौन क्या चाहता है, दादी या शाहगुल? उन्होंने तो सिर्फ कागजात तैयार करवाए थे, लेकिन फैसले का हक तो तुम्हें दिया था, और तुम मादाम तो जैसे दस्तखत करने को उतावली हुई जा रही थी। झटकर दिखे तो कौन चाह रहा था ऐसा, तुम, मैं या वो दोनों? यूं जल्दी दस्तखत कर दिए जैसे इसी दिन का तो तुम्हें इंतजार था कि कब तुम्हें मौका मिले और कब तुम कर गुजरो। वो चुपते हुए लहजे में बोला। उसके तंजिया लफ्जों की काट ईमान को अपने दिल को चीरती महसूस हुई। मैं नहीं बल्कि आप ऐसा चाहते थे, वो रुख फेर कर सख्त लहजे में बोली। अब उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने कब तुमसे ऐसा कहा कि मैं तुमसे अलहदगी चाहता हूँ? गज़नवी ने उसका रुख अपनी जानिब किया। बेशक ज़ुबान से ना कहा हो, मगर अपने रवैये से आपने ये बारहा ये बराबर करवाया है कि आप मुझे एक नापसंदीदा बोझ समझते हैं, और ये कि आपकी नज़रों में मेरी कोई वक़्त नहीं। ईमान ने अपने आंसुओं को पीछे देख के ला जो समुंदर की मुँह ज़ोर लहरों की तरह बाहर आने को बेताब थे। वाह वाह, आपकी अकल को तो मेरा सलाम है ईमान बीबी। ईमान के हर बात खुद से अख्ज़ कर लेने पर वो मज़ीद चिढ़ गया। मुझे आपके साथ नहीं रहना, ये कहकर वो तेज़ी से वहाँ से चले गई। ईमान को वो सरासर उसका मजाक उड़ाता महसूस हुआ था, जबकि गज़नवी ने गुस्से से भपटते हुए सामने पड़े शीशे के गिलास को फर्श पे दे मारा। कान छूटने की आवाज़ सुनकर किचन की तरफ आती शुमाइला बेगम दौड़ी आई थी। अभी कुछ देर पहले वो किचन में आई थी, मगर ईमान और गज़नवी को बात करते देखकर वापस पलट गई थी। क्या हुआ, ये गिलास?
शुमाइला बेगम ने फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों को देखा। कुछ नहीं। वो कड़े तेवर लिए किचन से निकला। शुमाइला बेगम घबरा कर उसके पीछे भागी थी। गजनवी को कमरे की तरफ बढ़ता देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। उन्हें खौफ ने आ लिया कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। हालात वैसे भी उसके खिलाफ जा रहे थे। गजनवी, बेटा रुको, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है। वो हामती हुई उसके पीछे आ रही थी, जबकि वो तेज कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसके इस तरह धड़ाम की आवाज़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने पर ईमान बौखला गई। वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा। वो अलमारी के पास खड़ी थी। ईमान की आंखों में खौफ ने नटक नटक से अंगड़ाई ली। गजनवी ने एक पल को उसकी खौफ से फैलती आंखों में झांका और फिर उसे पकड़कर ईमान के सामने से हटाया। ईमान ने पीछे मुड़कर एक नज़र दरवाजे के बीचों बीच खड़ी शुमाइला बेगम की तरफ देखा। ईमान को उनकी मौजूदगी ने कुछ हौसला दिया था। इस दौरान गजनवी ने अलमारी खोलकर उसमें से खुला के पेपर्स निकाले और अलमारी बंद करके उसके सामने आया। ये रही तुम्हारी आज़ादी। गजनवी ने खुला के पेपर्स उसकी आंखों के सामने पुर्जे पुर्जे कर दिए और फिर वो वहाँ रुका नहीं। ईमान दुम साधे खड़े थे। उसने पैरों में बिखरे कागज़ के टुकड़ों को देखा। शुमाइला बेगम को गजनवी से इस हरकत की कतई उम्मीद नहीं थी। गजनवी के जाने के बाद वो उसके पास आई। तुम परेशान मत हो, आएगा तो मैं समझाऊंगी इसे, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसकी आंखों में डोलती नमी अब पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर आकर उसका चेहरा भिगो रही थी। उसकी आंखों में दिखता सवाल शुमाइला बेगम को निगाह चुराने पर मजबूर कर गई। कहाँ थे तुम? रात के तकरीबन 11 बजे वो घर में दाखिल हुआ था। लाउंज से कमरे तक फासला वो बिना इधर उधर देखे तय कर रहा था कि मुकर्रम अहमद की आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसने पलट कर देखा तो वो सोफे पर बैठे यकीनन उसी का इंतज़ार कर रहे थे। उनके साथ शुमाइला बेगम भी मौजूद थी। दोनों की आंखों में गुस्से की बजाय सर्द महरे थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो मोबाइल पैंट की जेब में डालता करीब आया। वालेकुम सलाम, कहाँ थे? तुम्हारी माँ कब से तुम्हें फ़ोन कर रही है, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था। वो खड़े होते हुए बोले। फ़ोन ऑफ हो गया था, वो मुख्तसरन बोला। रूम में आओ, तुमसे बात करनी है। उसे घूरते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। अम्मी? शुमाइला बेगम ने भी उनके पीछे कदम बढ़ाए थे, मगर गजनवी ने उन्हें रोक दिया। गजनवी बेटा, जो मामलात आराम से बैठकर सुलझाने वाले हैं, तुमने अपने गुस्से की बदौलत उन्हें मज़ीद गुमगीर कर दिया है। तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि ईमान को नरमी से समझाओ, उसे अपने साथ का एहसास दिलाओ, मगर तुम सिर्फ मुझे बार बार उसके सामने शर्मिंदगी से दो चार कर देते हो। वो नहायत अफसुर्दगी से उसकी तरफ देख रही थी। अम्मी, वो ऐसी हरकतें करती क्यों हैं जिनसे मुझे गुस्सा आता है? वो खुद क्यों नहीं समझ लेती कि अगर मैं उसे छोड़ना चाहता तो इतना वक्त क्यों बर्बाद करता? उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह सब अपनी बात पहुंचाए। माफ़ करना बेटा, तुमने उसे अपनाया भी तो नहीं। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आपने उसका रवैया नहीं देखा? वो धीरे से बोला। बेटा, किसी से अपना रवैया इतना सख्त नहीं रखना चाहिए कि जब वो पलट कर आपके सामने आए तो आप उसे सह ना पाओ। जिनके गुजारने के लिए एक दूसरे के साथ समझौना करना ज़रूरी होता है, वरना रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। सिर्फ एक झटका काफ़ी होता है टूटने के लिए। जहाँ तक मैं जानती हूँ, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने शुरू से ही अपने और उसके बीच अना की दीवार तामीर कर रखी है। अब जबकि वो थक चुकी है और पीछे हटना चाहती हो तो तुम उसे पीछे हटने भी नहीं दे रहे हो। उन्होंने उसे नरमी से समझाने की कोशिश की। अगर वो थक गई हो तो कह नहीं सकती। वो अब भी झुकने को तैयार नहीं था। शाबाश बेटा, तुम एक औरत से ये उम्मीद कर रहे हो कि वो आगे बढ़कर तुमसे कहे कि तुम्हारे पीछे भागते भागते थक गई और तुम्हारा साथ, तुम्हारा सहारा चाहती है। ऐसे मामलों में औरत थक तो जाती है मगर हार नहीं मानती। अगर दादी और शाहगुल इस सलाहियत के मुद्दे को ना उठाते तो वो कभी अपने मुंह से ना कहती। यूं ही तुम्हारे पीछे पीछे भागती रही। वो सर दाएं बाएं हिलाती पलट कर जाने लगी। उन्हें लग रहा था कि वो दीवार से सड़ फोड़ रही हैं। आप मेरी माँ हैं या उसकी? जब देखो उसी की ढाल बनी खड़ी रहती हैं। उसका दिल कह रहा था कि गलती उसी की है, मगर दिमाग उसे सही करार दे रहा था। मैं तुम दोनों की माँ हूँ, लेकिन तुम मेरी तरबियत का वास रखने में नाकाम रहे गजनबी। अब चलकर अपने बाबा की बात सुन लो, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। शुमाइला बेगम ये कहकर पलट गई। वो भी खामोशी से उनके पीछे चलने लगा। अब एक और लेक्चर सुनना पड़ेगा, वो सोचकर ही वो कफ़्वत में मुब्तला होने लगा था।
शुमाइला बेगम के पीछे वो कमरे में दाखिल हुआ तो मुकर्रम अहमद खिड़की के करीब चेयर पर बैठे किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थे। खिड़की खुली हुई थी और तरोताज़ा हवा के झोंके खिड़की के पर्दे से टकरा कर कमरे के अंदर अपना एहसास दिला रहे थे। शुमाइला बेगम तो बेड की जानिब बढ़ गई, जबकि गजनवी उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो पूरी तरह से किताब में महव दिखाई दे रहे थे, या फिर दिखाई देने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। वो सामने खड़ा था और वैसे मुकम्मल तौर पर लापरवाही बरत रहे थे। बात उसे खुलने लगी। बाबा, आपको कुछ बात करनी थी। मजबूरन उसे उन्हें मुतवज्जो करना पड़ा। शुमाइला बेगम, देखा तुमने, ज़रा सी इग्नोरेंस इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मुकर्रम अहमद ने किताब गोद में रखी और शुमाइला बेगम की तरफ देखा। वो बच्चा नहीं था कि उनकी बात के पीछे छुपे मफहूम को न जान सकता। बरखुरदार, यही लापरवाही तुमने इस बच्ची से भी बरत रखी है। दादी और शाहगुल ने जो भी फैसला किया, पहले तो मैं उसके हक में नहीं था, मगर अब मैं भी उनके साथ हूँ। अब वो उसकी तरफ देख रहे थे। बाबा प्लीज़, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी कुछ गलतियाँ हैं जिन्हें मैं ठीक करना भी चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरी बात सुनने तब ना। ऊपर से आपकी बहू, वो तो 4 हाथ आगे है आप सबसे, मेरी बात ही नहीं सुनती। गुस्सा एक बार फिर रोद कर आया था। ये अच्छी बात है कि तुम अब अपनी गलती को सुधारना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें ईमान से माफ़ी मांगनी होगी। उठ खड़े हुए। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? वो बमुश्किल अपना लहजा धीमा कर पाया था, वरना उनकी बात ने आग पे तेल का काम किया था। जो रवैया तुमने उसके साथ रखा था, उसकी ज़ात की नफ़ी करते हुए इस रवैये की माफ़ी। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का बगौर मुआयना करते हुए बोले थे। वो जानते थे कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और ईमान उसके मजाज के सुरुख से अच्छी तरह वाकिफ़ है। माफ़ कीजिएगा बाबा, मैं उसे अपने किए की माफ़ी मांग चुका हूँ और आप सबका मुझसे मज़ीद माफ़ियों की तवक्को रखना गलत है। आप लोग अलहदी के टॉपिक को ख़त्म कीजिए और ईमान को मेरे साथ भेजिए, मैं वहाँ मेरे काम का हर्ज हो रहा है। वो अपनी बात कहकर खामोश हुआ। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी माँ ये सब नहीं चाहती, इसलिए मैं दादी और शाहगुल से सुबह इस बारे में बात करूँगा कि तुम्हें एक मौका और दें। जाओ, अब आराम करो, सुबह बात होगी। वो बेड की जानिब बढ़ गए। शुमाइला बेगम ने उनकी बात सुनकर सुकून का सांस लिया और मुस्कुराकर उसे जाने का इशारा किया। वो भी कमरे से निकल आया और कुछ देर के लिए वहीं लाउंज में बैठ गया था, क्योंकि इस वक्त वो ईमान का सामना नहीं करना चाहता था। अगले दिन मुकर्रम अहमद ने अकीला बेगम और आज़म अहमद से इस बारे में बात की। ये सुनकर तो उन्हें खुशी हुई थी कि गजनवी अलहदगी के हक़ में नहीं है। वो ईमान को साथ ले जाना चाहता था, जिस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, मगर फिर भी चूँकि अलहदगी का फ़ैसला ईमान का था, इसलिए वे एक बार उससे भी इस बारे में पूछना चाहते थे। वो अपनी पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहते थे। वो सब राज़ी थे। गजनवी को एक मौका देना चाहते थे, इसलिए अगले दिन सभी बड़े उनके रूम में मौजूद थे और ईमान का इंतज़ार कर रहे थे। शुमाइला बेगम उसे बुलाने गई थी। वो सब तो ये जान ही गए थे कि गजनी खुला के पेपर्स फाड़ चुका है और दिल ही दिल में उसके इस इक़दाम पर खुश भी थे। गजनवी भी वहीं मौजूद था। थोड़ी देर बाद ईमान शुमाइला बेगम के साथ कमरे में दाखिल हुई। वो दिल ही दिल में बहुत कन्फ्यूज़ थी। शुमाइला बेगम ने उसे नहीं बताया था कि दादी और शाहगुल उसे किस लिए बुला रहे हैं। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि ईमान भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती। बस वो गजनवी के रवैये के बायस ये फ़ैसला करने पर मजबूर हुई है। अस्सलाम वालेकुम। ईमान ने कमरे में दाखिल होते ही बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। गजनवी को वहाँ मौजूद पाकर वो मज़ीद घबरा गई थी, लेकिन सब फिर की मौजूदगी का एहसास उसे हिम्मत दिला गया। यहाँ आओ बेटा, मेरे पास। अकीला बेगम ने अपने पास बुलाया। वो नेतले कदमों से चलती उनके पास आकर बैठ गई। गजनवी ने एक बार भी उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। वो मुज़फ़्फ़र अहमद से बातों में मगन था। ईमान बेटा, हम सब ने गजनवी को एक और मौका देने का फ़ैसला किया है। तुम हमारे नज़दीक इतनी ही अहम हो जितना कि गजनवी है। वो अपने किए पर शर्मिंदा है और इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है और अलहदगी नहीं चाहता। हमने बेशक अलहदगी का फ़ैसला तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों को मद्देनज़र रखकर किया था, लेकिन हम में से कोई भी इस फ़ैसले पर खुश नहीं था। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी खुशी दरकार थी। खुदा गवाह है कि हमने तुम में और अपने बाकी बच्चों में कोई फ़र्क नहीं किया। तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा, लेकिन तुम ये ना सोचना कि हम तुमसे इस बुनियाद पर फ़ैसले का हक़ छीन रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हमने ये फ़ैसला तुम पर छोड़ा है कि तुम गजनवी को एक आखिरी मौका देना चाहती हो या नहीं। अकीला बेगम अपनी बात ख़त्म करके अब उसके बोलने के मुंतज़िर थी।
बल्कि सभी मुंतज़िर निगाहों से उसे देख रहे थे। गज़नवी भी उसी की तरफ देख रहा था। एक पल के लिए माँ ने निगाहें उठाकर अपने बिल्कुल सामने बैठे शख्स को देखा, जो उसके लिए एक ऐसे किले की मानी था जिसमें रहते हुए अब उसका दम घुटने लगा था, जिसमें कैद उसकी मोहब्बत का वजूद अब मुरझा गया था। गज़नवी का चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। वो उसके फैसले का मुंतज़िर तो था, मगर ये इंतज़ार उसकी आंखों में किसी राज की मानद था। वह नहायत संजीदगी से उसे देख रहा था। उसकी निगाहों की सर्द मजाजी ईमान को अपनी रगों में दौड़ते खून को मुंजमद करती हुई महसूस हुई थी। और फिर एक पल लगा उससे फैसला करने में, सिर्फ एक पल। उसने गहरी सांस खारिज करते हुए साथ बैठी अकीला बेगम को देखा। मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूँ शागुल, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है इस रिश्ते की सिलन ज़दा दीवारों के बीच रहकर। वो बिना झिझक कर बोली। वो नहीं जानती थी ये हिम्मत उसके अंदर कहाँ से आ गई थी। शायद उसने अपने दिल को मार कर ज़िंदगी गुजारना सीख लिया था। उसका फैसला सुनकर सब कुछ ऐसे सांप सूंघ गया। अकीला बेगम ने गजनवी को देखा। गजनवी तेज़ी से उठा और कमरे से निकल गया। ठीक है बेटा, जो तुम्हारा फैसला वही हमारा फैसला। अकीला बेगम उसे समझाना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती आज़म अहमद ने उसके फैसले पर मोहर लगा दी। वो खामोश हो रही। ईमान को अंदाज़ा हो गया था कि वो सब इसके फैसले से खुश नहीं है, बस उसकी खातिर खामोश हो गए हैं। वो इन्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहती थी, मगर वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद दुखों में भी धकेल नहीं सकती थी। इस शख्स पर एतबार नहीं कर सकती थी। एक अनापरस्त शख्स पर भरोसा करने की गलती वो दोबारा नहीं करना चाहती थी। वो खामोशी से वहाँ से उठ आई। बाकी सब उसके अल्फाज ही चक्रियों में फंसे हुए थे। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो नाजुक सी लड़की, नरम जज्बात रखने वाली लड़की इतना कठिन फैसला कर सकती है। बस अब इस बारे में मज़ीद बात नहीं होगी। आज़म अहमद ने कीला बेगम के बहते आंसुओं को देखते हुए कहा, लेकिन दादी वो बच्ची है, अगर गज़नवी एक मौका चाहता है तो क्यों नहीं? हम बड़े हैं, ईमान को समझाना हमारा फ़र्ज़ है। वह एक गलत फ़ैसला कर रही है। मुझे पहले भी इस फ़ैसले पर इख्तिलाफ़ था और अब भी है। शागुल, आप लोगों को खुला तक बात लानी नहीं चाहिए थी। अब देख लें आप। शुमाइला बेगम भी रोने लगी थी। शुमाइला, ये किस तरह बात कर रही हो तुम शागुल से? बेटी की मोहब्बत तुम पे इस कदर हावी हो गई कि इस बच्ची की तकलीफ़ तुम्हें दिखाई नहीं देती? कौन औरत अपने हाथों से अपना घर जलाना चाहेगी? अगर उसने ये फ़ैसला किया है तो ये फ़ैसला करने के लिए तुम्हारे बेटे ने उसे मजबूर किया है। अगर गज़नवी के करतूत अच्छे होते तो वो उसे एक मौका ज़रूर देती, हमारे फ़ैसले को इज़्ज़त देती। मुकर्रम अहमद को शुमाइला बेगम का बात करने का अंदाज़ पसंद नहीं आया था। मुकर्रम? आज़म अहमद ने मुकर्रम अहमद को तनबीही नज़र से देखा। मुकर्रम अहमद उठकर वहाँ से चले गए। माफ़ कीजिएगा शाकुल। शुमाइला बेगम उठकर अकीला बेगम के पास आई और उनके हाथ थाम लिए। शुमाइला, कैसी माफ़ी? तुमने बिल्कुल ठीक किया है। हमने बहुत जल्दबाजी से काम लिया। अकीला बेगम अफसरदा लहजे में बोली। ठीक है, तो फिर ईद के बाद इस फैसले को अमली जामा पहनाएंगे। हो सकता है तब तक कोई नरम शगुफ़ा इन दोनों के दिल में फूट पड़े। आज़म अहमद ने सभी से कहा और वाशरूम की जाने बढ़ गए। बाबा ठीक कह रहे हैं, हो सकता है मामले को तवालत देना कोई बेहतर मुतबादल सामने ले आए। मुअज़्ज़म अहमद ने अपनी खामोशी को तोड़ा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुकर्रम अहमद ने कहा तो सभी ने आमीन कहा। वो दोबारा से सीधी लॉन में आई थी। मौसम काफ़ी खुशगवार हो रहा था। हल्की हल्की हवा तबीयत पर अच्छा असर डाल रही थी। वो कैन की कुर्सी को पीटर के साए में ले आई और वहीं बैठ गई। मुझे तो खुश हो जाना चाहिए था, फिर क्यों मेरे दिल की गिरह खुली नहीं है? क्यों इस रिश्ते के बेजान लाशे पर आंसू बहाने को जी जा रहा है? क्यों अपना ही फैसला मुझे बेआबा में घसीट लाया है? वो चेहरा हाथों में छुपाए रो दी। यूँ रोने से दिल पर पड़ा बोझ कम होने से रहा। अरफा की आवाज़ पर उसने चेहरे से हाथ हटाकर उसे देखा। वो तेज़ी से अपने बहते आंसुओं को साफ किया। अरफा के साथ अनादल, मलाइका और बाकी सब भी थी। वो सभी उसके पास नीचे बैठ गई। जानती हूँ कि दिल पे पड़ा बोझ रोने से कम नहीं होगा, मगर इस दर्द में घुलने से तो बेहतर है कि उसे किसी सूरत तो बाहर निकालूं, वरना अंदर से मज़ीद खाली हो जाऊंगी। आंसू एक बार फिर से उसका चेहरा भिगोने लगे थे। अगर अपना ही फैसला सहल नहीं कर पा रही हो तो क्यों किया ये फैसला? फ़ाइका ने उसका हाथ हाथों में लिया। तो फिर क्या करती बताओ? ईमान के पूछने पर फ़ाइका खामोश रही। एक बार भी शख्स की बेतनाई सहने की हिम्मत नहीं है अब मुझ में।
गजनवी अपनी अना के ज़म में कैद एक मजबूत दीवार है जिसे सर टकरा कर मैं लहूलुहान तोड़ सकती हूँ, पर उसे तोड़ नहीं सकती। ईमान के रोने में इजाफा हुआ। फाका ने उसके आंसू पूंछे, तो जब दिल कड़ा के फैसला ले लिया है तो फिर खुद को मजबूत रखो। लारेब ने भी समझाने की कोशिश की। ईमान का यूं रोना इन सबको तकलीफ दे रहा था। तुम फिक्र ना करो, मुस्तफ़ा आएंगे तो मैं बात करूंगी कि वो गजनवी से बात करे, उसे समझाएं। परखा ने उसे साथ लगाया। नहीं परखा आपी, आप कोई बात नहीं करेंगे मुस्तफ़ा भाई से। ईमान ने परखा को मना किया। अच्छा ठीक है, तो फिर संभालो खुद को। परखा ने उसे हल्का सा डांट दिया। ओए, गजनवी भाई आ रहे हैं। अनादल ने गजनवी को बाहर आते देखकर कहा तो सब घबरा कर उठ खड़े हुए। ईमान ने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया और थोड़ा सा रुख मोड़ गई। वो गुस्से में लग रहा था और इन सब पे एक ही नज़र डाले बगैर सूटकेस को तकरीबन घसीटते हुए गाड़ी तक लाया। रफ़ीक, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चिल्लाते हुए चौकीदार को आवाज़ दी। वो बेचारा भाग कर आया और सूटकेस उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर रखा, फिर गेट खोलने के लिए भागा। वो सब वहीं खड़ी उसे जाता देख रही थी, लेकिन ईमान ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। उसे डर था कि एक बार भी अगर उसने उसे पलट कर देख लिया तो वो टूट जाएगी, और वो टूटना नहीं चाहती थी। गेट खुलते ही वो गाड़ी जन से गेट से निकाल ले गया। चलो जी, अल्लाह मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। अनादल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ये क्या बोंगियां मार रही हो? साजिश ने उसके सर पर चपड़ लगाई। अल्लाह, आपी मुहावरा बोला है ना। अनादल ने सर पर हाथ फेरा। इस वक्त तो इन दोनों पर यह मुहावरा सूट करता है। वो क्या था? लारेब सोचने लगी। वह सभी उसकी तरफ देख रही थी। हाँ, याद आया, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। लारेब बोली तो सभी को हंसी आ गई। चुप, ये कोई मौका है शगुफे छोड़ने का? सैरिश ने उन्हें डांटा और ईमान की तरफ इशारा किया, जो अभी तक पीट किए बैठी थी। वो सभी खामोश हुई। वैसे ईमान की इस वक्त हल्के फुल्के माहौल की ज़रूरत है। क्यों अनादल? लारेब ने अनादल को ठोका दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। अनादल ने लारेब की हाँ में हाँ मिलाई। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि गजनवी भाई को फ़ोन करके कहते हैं कि ईमान उनके गम में बेहोश हो गई है। मलाइका जो इतनी देर से बिल्कुल खामोश बैठी थी, खड़ी हुई। ईमान ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा। खबरदार मलाइका, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर मुझसे कभी बात मत करना। मुझे वार्निंग करती वहाँ से चली गई। इन दोनों को सीधा करने के लिए हमें कुछ करना होगा। परखा ने दूर जाती ईमान पर से नजरें हटाकर इन सब की तरफ देखा। कैसा? वो जो सब उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी, उसके यूं भनुएं झुकाकर हाथ फैलाने पर हंसती और उसके हाथ पर हाथ रखती है। अब वो सब सर जोड़े और हालात हाजिर का जायजा लेते हुए अपने अपने आइडियाज दे रही थी। ऐ लड़कियों, ये क्या सर जोड़े बैठी हो तुम सब? फिर कौन सी खिचड़ी पका रही हो? खैरन बुआ फूलती सांसों पर कपाती उनके करीब रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। कुछ नहीं बुआ, हम बस यूं ही। सैरी सीधी होकर बैठ गई। अच्छा जाओ, अपनी माँ की मदद करो जाकर, रमज़ान शुरू होने वाला है। खैरन बुआ घुटनों पर हाथ रखती उठ खड़ी हुई और उनके जाने के बाद वो सारी एक बार ज़ोर और शोर से उसे अपनी स्कीम तैयार करने लगी। प्लान बनाने के बाद उन्होंने लड़कों से भी बात कर ली। वो सब भी तैयार थे जाने के लिए, लेकिन उन्होंने बड़ों को मनाने का जिम्मा उन्हीं के सर डाल दिया था। इन सब ने कल का दिन डिसाइड किया था, अकीला बेगम से बात करने का, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। गजनवी के इस तरह बिना बताए चले जाने से वो बहुत परेशान थी, बल्कि सभी परेशान थे। प्लीज़ शागुल, आप परमिशन ले देना दाजी से। वो सारी अगले ही दिन अपने मुनक़ता प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए अकीला बेगम के पीछे पड़ी हुई थी। ऐ लड़कियों, बिल्कुल भी बावली हुई जा रहे हो तुम लोग तो। ये भी कोई दिन है घूमने फिरने की? ईद के बाद चले जाना सारे। खैरन बुआ भी अपना पान दान लिए वहीं बैठी हुई थी और उनके प्लान का तयापांचा करने की कोशिश में थी। बुआ ठीक कह रही हैं, 4 ही दिन तो बाकी हैं रमज़ान और मुबारक में, और तुम लोग 1-2 दिन के लिए जाकर भी क्या करोगे? ईद के बाद सब मिलकर जाना और ज़्यादा दिन गुजारना। 2 दिन में क्या लुत्फ़ उठा पाओगे? शुमाइला बेगम ने समझाया। अम्मी, ये प्लान हमने अपने लिए थोड़ी ना बनाया है, ये तो हमने ईमान के लिए बनाया है। वो बहुत उदास है, जगह बदलेगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा ना। आप देख तो रही हैं ना कि कितनी खामोश हो गई है। मलाइका ने शुमाइला बेगम के गले में बाहें डाली। वह सब भी ज़ोर ज़ोर से सरे लाने लगी। सहरिश और परखा, ये तो बच्चियां हैं, मुझे तुम दोनों से सी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों को चाहिए था कि उन्हें समझाती, उल्टा उनकी इतनी सीधी पींगों में तुम भी झूलने को तैयार होगी।
اپنے اپنے شوہروں سے اجازت لی ہے تم دونوں نے؟ شمائلہ بیگم نے پرخا اور شاعری سے پوچھا۔ او ہو ممانی، بتا تو رہے ہیں کہ سارا پلان ہم نے صرف اور صرف ایمان کے لیے بنایا ہے، اور ہادی اور مصطفیٰ بھائی بھی جا رہے ہیں ہمارے ساتھ، سائرش بولی۔ اب شمائلہ بیگم کو کیا پتہ تھا کہ یہ پلان انہی دونوں کا ہے، ورنہ دونوں کی خیر نہ ہوتی۔ بھابھی بچیاں ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایمان بہت چپ چپ سی رہنے لگی ہے۔ اچھا 1-2 دن گھوم پھر آئے گی تو اچھا رہے گا، شاگل آپ بھی مان جائیں، پھر لڑکے ساتھ جو آ رہے ہیں۔ سائمہ بیگم نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بلاخر عقیلہ بیگم کو ماننا ہی پڑا۔ ہاں ان کا ماننا ہی تھا کہ سب خوشی سے اچھلنے لگی۔ اے لو، اب بندریا کی طرح اچھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیرن بوا منہ پر دوپٹہ رکھ کر ہنسنے لگی۔ چلو بندریو، پیکنگ کرو اور ساتھ ہی ساتھ بندروں کو بھی اطلاع دے دو۔ انادل نے کہا تو سبھی ہنس دیے۔ اچھا ہم بندریاں تو آپ کیا ہیں؟ ملائکہ نے انادل سے پوچھا۔ یہ بندریوں کی شہزادی ہیں۔ اس سے پہلے کہ انادل جواب دیتی، لارے بول پڑی۔ کانسٹریٹ گرلز شہزادی۔ انادل نے ایک ادا سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ جی جی شہزادی صاحبہ، چلے ہم پیکنگ کر لیں۔ لاریب نے انادل کو بازو سے پکڑا اور وہاں سے چلے گی۔ پیچھے وہ سب بھی باری باری نکل گئی۔ کیا ہوا؟ کل سے یہ تیری اجڑی شکل دیکھ رہا ہوں، اب تم کچھ بتاؤ گے یا پھر اس معاملے میں مجھے پولیس کی مدد لینی پڑے گی؟ کمیل دیکھ رہا تھا کہ جب سے وہ آیا تھا کچھ خاموش سا تھا، پہلے بھی کوئی اتنا باتونی نہیں، مگر کبھی اس طرح چپ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اسے شیئر کرتا ہے، مگر وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتا، اور کام نہ ہوتا تو خیالوں میں گم رہتا۔ جب اس نے ذکر نہیں کیا تو آج اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ کیا مطلب؟ غزنوی نے فائل بند کر کے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے کوئی اتنا مشکل سوال نہیں پوچھا کہ تم جواب نہ دے سکو، جبکہ جانتے بھی ہو کہ میں کس بارے میں پوچھ رہا ہوں اور کیوں پوچھ رہا ہوں۔ کمیل ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر اس کی جانب جھکا تھا۔ کام کے بارے میں بات کرے تو، اور کام کے بارے میں ہی بات کرے تو اچھا ہوگا۔ غزنوی دوبارہ فائل کھول کر اس پہ جھک گیا۔ ٹھیک ہے، تم نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ۔ کمیل نے اس کے ہاتھ سے فائل لے لی اور پھر دونوں ہونے والی میٹنگ کے اہم پوائنٹ ڈسکس کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، یہ فائل میں ایک بار ہارون صاحب کو دکھا دیتا ہوں، تم تب تک چائے منگواؤ اور ساتھ کچھ کھانے کو بھی منگوا لینا۔ کمیل فائل اٹھا کر کیبن سے نکل گیا۔ چائے کی طلب تو اس سے بھی ہو رہی تھی، اس لیے اس نے چائے منگوائی اور چیئر سے پوسٹر ٹکا کر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ فارغ ہوا تو خیالات کی ہوا پھر سے اسی انہی لمحوں میں واپس لے گئی۔ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے گھر میں اور گھر سے باہر اس نے خود کو کام میں مصروف رکھا۔ ایمان کے فیصلے نے اس کے دل و دماغ کا سکون برباد کر رکھا تھا۔ گھر میں ہوتا تو اس کی یاد اور شدت اختیار کر لیتی تھی۔ ایمان نے یہاں زیادہ وقت نہیں گزارا تھا، مگر پھر بھی اسے گھر کے ہر ایک کونے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے آفس میں زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ آنکھیں بند کے گہری سوچ میں گم تھا کہ کمیل نے ٹیبل بجا کر اسے متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، ہارون صاحب کو کہتے کہ ایک بار اچھے سے اسٹڈی کر لیں۔ وہ سیدھا ہوا۔ اسی دوران پیون چائے اور اسنیکس لے کر انٹر ہوا۔ ہاں کہہ دیا ہے، کمیل اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ گھور کیوں رہا ہے؟ غزنوی نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ گھور نہیں رہا، دیکھ رہا ہوں کہ ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھے بتا نہیں پا رہے ہو۔ کمیل نے کپ اس کے ہاتھ سے لے کر واپس ٹیبل پر رکھا۔ تمہیں تو یوں ہی خواہ مخواہ تجسس کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے کہا تو کمیل ہنس دیا۔ بس ایک بات کہوں، بالکل مجنوں لگ رہا ہے۔ کمیل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یوں ہی بے رخی اڑاتا چھوڑو اور کام پہ دکان دو، مجھ پر ریسرچ کرنے سے کچھ نہیں ملنا۔ وہ چائے کا کپ اٹھاتا بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بے پرواہ کیوں اٹھا رہا ہوں، تم یہ بتاؤ کہ بھابھی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ کمیل نے بے خیالی میں اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ 1-2 دن میں آ جائے گی، اس نے اس موضوع سے جان چھڑائی۔ اچھی بات ہے۔ کمیل نے اسنیکس کی پلیٹ اپنی جانب کھینچی۔ غزنوی نے بھی شکر ادا کیا، ورنہ کب سے اس کی دوربین جیسی آنکھوں کو خود پہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے چائے پینے لگا، لیکن دماغ نے پھر سے ایمان کی یادوں کے چکر لگانا شروع کر دیے تھے۔ کھلی جو آنکھ تو وہ تھا نہ وہ زمانہ تھا، دہکتی آگ تھی، تنہائی تھی، فسانہ تھا۔ غموں نے بانٹ لیا ہے مجھے یوں آپس میں کہ جیسے میں کوئی لوٹا ہوا خزانہ تھا۔ یہ کیا کہ چند ہی قدموں پہ تھک کے بیٹھ گئے، تمہیں تو ساتھ میرے دور تک نبھانا تھا۔ مجھے جو میرے لہو میں ڈبو کے گزرا ہے وہ کوئی غیر نہیں، یار ایک پرانا تھا، خود اپنے ہاتھ سے
शहजाद उसको काट दिया कि जिस दरख्त की टहनी पे आशियाना था। आबला परवीन की दर्द में लिपटी आवाज़, गज़ल के बोल उसके दिल की चुभन को बढ़ा रहे थे। आंखें तो हर पल छलकने को बेताब रहने लगी थी। इस वक्त भी उसकी आंखें भीग गई थी। उसने गजनवी से अलग होने का फैसला तो ले लिया था, मगर उसे अलग होना आसान नहीं था। इस कमरे की हर एक शय में उसकी याद झलकती थी। कमरे में रहती तो दिल का दर्द सवा हो जाता, और गजनवी की मौजूदगी का एहसास उसे कमरे से बाहर जाने नहीं देता था। उसका हाल पिंजरे में कैद इस पंछी जैसा था जिसे उसकी कैद से मोहब्बत हो गई है। वो गांव जाना चाहती थी, मगर शागुन ने उसे जाने नहीं दिया था। वो जानती थी कि अगर वो चली गई तो वापस नहीं लौटेगी, लेकिन उन्होंने इससे वादा किया था कि वो उसे गांव लेकर ज़रूर जाएंगे। वो इन्हीं सोचों में मगन थी। वो सारी किसी हजूम की मादित कमरे में दाखिल हुई। चलो लड़कियों, पैकिंग करो, हम जा रहे हैं। परखा ने करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ईमान ने ना समझी से पहले परखा और बाकी सबकी जानिब देखा। अरे यार, मैंने बहुत सादा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तुम तो मुझे यूं देख रही हो जैसे मैंने फारसी बोली हो। परखा ने उसकी हैरान नज़रों के जवाब में कहा। मगर कहाँ? ईमान ने पूछा। मरी? लारेब और अनातल एक आवाज़ होकर बोली। मरी किस लिए? उसने गैर दिमागी से सवाल किया। वहाँ खला से खलाई मखलूक का बच्चा गिरा है और हम गोद लेने जा रहे हैं, अनातल ने नहायत मासूमियत से कहा। बाकी सबके लबों पर दबी दबी मुस्कान सज गई। ईमान भी उसकी बताई बात सुनकर मुस्कुरा गई। यार, हमने सोचा थोड़ी आउटिंग शाउटिंग हो जाए, इसलिए हमने मरी जाने का प्लान बनाया है, अरफा ने कहा। तुम लोग जाओ यार, मुझे नहीं जाना, ये कहती वो बेड पे जा बैठी। कोई बहाना नहीं, तुम हमारे साथ चल रही हो। सैरिश उसके पास आकर बैठ गई और बाकी सब भी उसके सर हो गई और उसे मना कर ही दम लिया। साथ ही साथ मिलकर उसकी पैकिंग भी करवा ली। अरे ये इतने सारे कपड़े, हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं। ईमान ने परखा को इतने ज़्यादा कपड़े बैग में रखते देख कर कहा। यार क्या पता हम ज़्यादा दिन के लिए रुक जाएं। सैरिश ने कहा तो वह मज़ीद कुछ ना कह सकी। अगले दिन उनकी रवानगी थी। ये तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रही हो? ईमान ने फाइका, लारेब और मलाइका को देख कर कहा। वो कितनी देर से उन्हें नोट कर रही थी कि वो एक दूसरे के कान में कुछ कहती और फिर हंसने लगती। हमारी आपस की बात है, फाइका ने हंसते हुए कहा। अच्छा, ईमान ने गैर मुतमईन अंदाज में कहा। जी। फाइका एक लंबी सी जी कहकर फिर से अपने काम में मशगूल हो गई। कुछ देर बाद जब शगुफ्ता उन्हें रात के खाने के लिए बुलाने आई तो उनकी ये खुसर फुसर बंद हुई। मरी में इन सब ने बहुत एंजॉय किया। सिर्फ 2 ही दिन थे, इसलिए वो सब खूब घूमे फिरे। जगह की तब्दीली ने ईमान पर अच्छा असर डाला था। इन सब ने भी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो जो कोई भी ऊटपटांग हरकतें करती, साथ में उसे भी शामिल रखती। और शाम के बाद उनकी वापसी थी। उनका जी तो नहीं चाह रहा था, मगर प्लान नंबर 2 पे अमल भी तो करना था। इसलिए उन्होंने जाने से पहले कुछ शॉपिंग की और फिर रवाना हुए। यार, ये तुम लोग क्या कर रही हो? चुप करके बैठो, कान खा लिए हमारे। अब अगर चू चू की ना तो यहीं गाड़ी से उतार दूंगा। उनकी हंसी को ब्रेक लगाने के लिए मुर्तज़ा ने पीछे मुड़कर उन्हें हल्की फुल्की डांट से नवाजा। मुस्तफ़ा भाई, क्या हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं? मुर्तज़ा की बात को इग्नोरेंस के डिब्बे में डालकर अनादल ने मुस्तफ़ा से पूछा। हाँ गुड़िया, हम पहुंच गए इस्लामाबाद, मुस्तफ़ा ने जवाब दिया। अच्छा, गजनवी भाई का घर यहाँ से करीब है। अगला सवाल लारेब की जानिब से है। नहीं, मुस्तफ़ा का मुख्तसर जवाब आया। लारेब ने नादर को देखा। अभी 20 मिनट का सफ़र मज़ीद किया था कि फ़ाइका पेट पकड़ कर रोने लगी। सभी उसकी तरफ मतवज्जो हो गए। क्या हुआ फ़ाइका? सैरी जो उसके पास ही बैठी थी परेशानी से पूछने लगी। अपी, पेट में शदीद दर्द हो रहा है, वो पेट पकड़ कर दोहरी होते हुए बोली। ईमान भी परेशानी से उसे देख रही थी। मुस्तफ़ा ने गाड़ी रुकवाई। सभी फ़ाइका की तरफ मतवज्जो थे। उसकी हालत तो बहुत ख़राब हो रही है मुस्तफ़ा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। परखाने से सीने से लगी रोती फ़ाइका को देखकर मुस्तफ़ा से कहा। हाँ, कुछ करते हैं। मुस्तफ़ा ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। क्यों ना हम गजनवी भाई की तरफ चलें? अनादर का मशवरा सभी को पसंद आया और मुस्तफ़ा ड्राइवर को गाइड करने लगा। कुछ देर बाद वो गजनवी के घर पहुंच गए थे। गजनवी इन सबको वहां देखकर हैरान रह गया था। तुम सब यहाँ कैसे? गजनवी ने मुस्तफ़ा के गले मिलते हुए पूछा। यार, फिलहाल इस बात को छोड़ो, फ़ाइका की तबीयत ठीक नहीं, इसे डॉक्टर पे लेकर जाना है। मुस्तफ़ा ने गजनवी का ध्यान फ़ाइका की तरफ दिलाया, जो लॉन में कैन की कुर्सी पर बैठी मुसलसल रोए जा रही थी। ईमान भी चेहरे पे परेशानी लिए उसी के साथ थी। अच्छा ठीक है, चलो।
गजनबी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो मुस्तफ़ा ने परखा और ईमान को इशारा किया। वो दोनों फ़ाइका को सहारा दिए गाड़ी तक लाईं। परखा भी साथ ही बैठ गई और गाड़ी तेज़ी से गेट से निकल गई। जैसे ही गाड़ी गेट से निकली वो सारी अंदर की तरफ बढ़ी। भाभी अच्छी सी चाय पिलवा दें, मुर्तज़ा ने सोफ़े पर बैठते हुए ईमान से कहा तो सर हिलाती किचन की जानिब बढ़ गई। गजनबी और मुस्तफ़ा जो फ़ाइका को लिए वापस आए तो सब वही लाउंज में उनका इंतज़ार कर रहे थे। फ़ाइका अब थोड़ी बेहतर लग रही थी। परखा ने उसे वहीं बिठाया। ईमान उसके पास आई और उससे तबीयत का पूछा। फ़ाइका ने उसे बताया कि वो बेहतर महसूस कर रही है। उसे बेहतर देखकर ईमान के चेहरे से परेशानी के बादल छटे थे। सभी लड़कियां परेशानी से परखा की जानिब देख रही थी। उसने आंखों ही आंखों में सब ठीक रहने का इशारा किया तो वो रिलैक्स होगी। अब इस वक्त तो वापस जाना मुनासिब नहीं। घर फ़ोन करके बता दो कि तुम लोग यहाँ हो और आज वापस नहीं आ पाओगे। गजनबी ने एक नज़र फ़ाइका के पास बैठी इस दुश्मन जान पर डाली और मुस्तफ़ा से कहा, भाई मैंने कर दिया है। फ़रोज़ ने मुस्तफ़ा को मोबाइल निकालते हुए देख कर कहा, ठीक है तो फिर आराम करो तुम सब। गजनबी ने सबसे कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो सभी सोने के लिए उठ गए। ईमान और परखा किचन में थी। परखा को चाय की तलब हो रही थी, इसलिए वो उसके लिए चाय बना रही थी। बाकी लड़कियां जैसे ही ईमान के बताए हुए कमरे में पहुंची, एक हंसी का फव्वारा था जो फूट पड़ा था। यार तुम बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस निकली। आज तो तुमने सभी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया। लारेब ने फ़ाइका की पीठ थपथपाई। तुम लोगों को क्या पता, डॉक्टर के पास जाते हुए तो मेरी जान निकली जा रही थी, लेकिन थैंक गॉड परखा आपी ने बचाया हारें, वरना तो बच्चू गए थे तुम सब। फ़ाइका अपनी गर्दन पर छुरी फेरने के अंदाज में उंगली फेरते हुए बोले, चलो शुक्र है सब ठीक हो गया, अब आराम करते हैं, अगला प्लान कल। अरफान ने शरारती अंदाज में आंख मारी तो सभी हंस दी। और हाँ यार, ईमान को ज़रा सा भी शक न हो कि ये सब हमारी प्लानिंग थी। सैरिश ने इन सबसे कहा तो वो सब सर हिलाकर अपनी अपनी जगह पर लेट गई। ईमान ने मैट्रिसेस बिछाकर उनके लिए सोने की जगह बनाई थी। सैरिश उन्हें सोने का कहती रूम से बाहर आ गई। चलो ना, सोना नहीं है क्या? वो दोनों किचन में चाय ख़त्म होने के बाद भी बातों में मगन थी। जब सैरिश किचन में आई, हाँ बस जा ही रहे थे, परखा ईमान के सामने से कप उठाकर सिंक की तरफ बढ़ी।